Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester and subject marketing management. And today's lecture we have to discuss two topic, a very small topic. That's why we will discuss in this lecture two topic. First one is the brand decision, or which will be called as the brand management, and second one is the packaging decision. So first we will start the brand decision. So what is brand? So if this writing is not clear, you have to refer the notes which are available in your PDF group. So you have to look page number 11, which will be given in your PDF. So you have to refer. If this is not clear, so you have to refer the notes which are available in PDF form. You have to refer a page number 11. So what is brand management? So branding is the process of giving a unique name, image and identity to a product for differentiating it from others and creating emotional association with the customer. So what is branding? Is the branding is the unique name, identity given of that particular product. On the basis of that, every customer can easily identify that particular product. So this is called as the branding. So brand may be in the names, symbol. We will see the definition. According to American Marketing Association, brand is the name, term, sign, symbol or design or combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of the competitors. In simple terms, we can say that सादे शब्दों में अगर कहा जाए तो branding is the any name, symbol, design of that particular product which is given by the company to the product. The main purpose of branding is to easily identifying of that product. Similarly, the company is trying to differentiate his product from the competitors in the market. यानी ब्रांडिंग करते वक्त ये तो ठीक है कि सिंबल रहेगा. ब्रांडिंग मीन्स क्या है? सिंबल रह सकता है, नेम रह सकता है, डिज़ाइन रह सकता है, ये सभी जो है इसको ब्रांडिंग कहते हैं. लेकिन ब्रांडिंग का पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए. ये एक मेन पर्पस है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई. दैट मीन्स कस्टमर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइन, on the basis of design, on the basis of the symbol which is framed by the company. Similarly, the product can be differentiated on the basis of such symbols, such design. Product should be differentiated. Company should trying to make the product differentiate from the another customer. This one is the basic purpose. And at the same times, the registered, if the brand is registered, so it is legally protected. अगर वो brand जो आपने particular brand name चूज किया है प्रोडक्ट का, वो सिंबल रहे, डिजाइन रहे या कुछ और रहे, if it is a registered, it is called as a trademark, and such trademark should be used legally. That means it should not be copied by other competitor firms. अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो कोई भी कॉम्पिटिटर्स आपका जो है, आपका सिंबल, आपका डिज़ाइन, आपका नाम कॉपी नहीं कर सकेगा. अगर वो कॉपी करता है तो यू कैन लीगली शू ऑन दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स. आप उस पर केस दायर कर सकते हैं. तो ब्रांडिंग यानी ध्यान में आ गया कि ब्रांडिंग कुछ एक ही नहीं है. मतलब सिर्फ नाम देना ही ब्रांडिंग नहीं है. वो नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए. सो विच इज कॉल्ड एज द ब्रांडिंग. सो it should be legally protected when, if we registered this particular brand name, symbol or design, so it is protected by law. If anyone
is copied of that particular design, you can show on that particular competitors, you can file a petitions against that particular competitors. So this is called as the branding, and branding is necessary for identifying that particular products. It is not possible to introduce the product without giving the brand name. So it includes, first one is creating the promise. क्रिएटिंग द प्रॉमिस मीन्स ब्रांडिंग क्या डिज़ाइन करता है. कई बार हम जो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं कि हम चीज़ ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मीन्स जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी एक इमेज है, उसका एक स्टेटस है, इसलिए कोई भी पर्सन होता है कि हम ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज क्रिएटिंग दी प्रॉमिस. ब्रांड क्या करता है? ब्रांड प्रॉमिस क्रिएट करता है, वो अश्योरिटी देता है, अश्योरेंस देता है कस्टमर को. दी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैज सच टाइप्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दी कस्टमर. कस्टमर को जिस प्रकार की हाई क्वालिटी चाहिए उस प्रकार की क्वालिटी वो पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट में होती है. तो ये प्रॉमिस क्रिएट करता है. अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर कोई नाम ही नहीं है, प्रोडक्ट को नाम नहीं है, सिंबल नहीं है, सिर्फ प्राइस लिखी है और प्रोडक्ट देना है, तो कस्टमर लेंगे क्या? नहीं लेंगे. और लेंगे भी तो विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे. तो क्रिएटिंग अ प्रॉमिस, ब्रांड क्या करता है? इट क्रिएट्स अ प्रॉमिस ऑफ दैट पर्टिकुलर customer that the product which the company is selling has such types of quality which is expected by the customer. So this is called as the creating the promise. Second one is the making the process. Second one is the making the making the promise. One correction is there, making the promise. First one is creating the promise, second one is making the promise. फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या किया? यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉमिस की एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड क्वालिटी, यू हैव टू प्रोवाइड सच टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी. मेकिंग द प्रॉमिस मीन्स यू हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ क्वालिटी दैट व्हाट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड. यहाँ पे सिर्फ आपने प्रॉमिस किया है कि वी हैव टू ऑफर सच टाइप्स ऑफ क्वालिटी अंडर सच टाइप्स ऑफ ब्रांड. बट making the promise means you have to make that particular promise, you have to fulfill the expectation of customer by providing the quality product to the customers. यहाँ पे आपने उनका प्रॉमिस फुलफिल किया, वो एक्सपेक्टेड क्वालिटी प्रोवाइड की दैट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड. एंड थर्ड थिंग इज कीपिंग द प्रॉमिस. अब वो एक ही बार नहीं, you have to continuous, you have to take the, as a company you have to take a continuous efforts of fulfilling the promise, keeping the promise. That's what customers are expected from you. तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं. पहला, creating the promise. First you have to first create the promise. It is not only sufficient to create the promise, but making the promise, you have to fulfill that particular promise. And third one is the, it is a continuously providing the such types of goods which is required as per the expectations of the customer. That means keeping the promise. So this is called as the brand decision. हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड डिसीजन बोलेंगे. These are some small functions of brand which are available in your PDF form. फंक्शंस ऑफ ब्रांड्स इज मेक द कस्टमर्स लॉयल एंड ब्रांड ओरिएंटेड. यानी अगर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट रहा तो कस्टमर लॉयल रहते हैं. अब लॉयल कस्टमर यानी क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है. उसके बाद में जो है, हेल्प्स टू इजीली गेट द लाइसेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल expansion of the organization. You have to get the easy license on the basis of the good brand and helps to face the competition. और कंपटीशन में प्रोडक्ट आपका खड़ा रहना चाहिए. द प्रोडक्ट हैज़ टू फेस अ कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड ब्रांड इमेज. तो दीज आर द एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ द ब्रांड डिसीजन. सेकंड वन इज द पैकेजिंग डिसीजन. Packaging means what? It's a covering of that particular product. So second one is we will take that is the packaging. So packaging means,
packaging means you have to refer the, if it is not clearly seen, you have to refer the PDF copy and page number 12. What is packaging? In wording, packaging means the wrapping or bottling of the product to make them safe from the damages during the transportation and storage. It keeps the product safe and marketable and helps in identifying, describing and promising the product. पैकेजिंग मीन्स क्या है? टू सेफगार्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम द लीकेजेस एंड स्पॉइलेज, यानी एक प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर वो खराब नहीं होना चाहिए, उस पर अफेक्ट सनलाइट का और किसका होना नहीं चाहिए. दैट्स वाई वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रॉपरली. पैकेजिंग, सच पैकेजिंग इज कॉल्ड एज द पैकेजिंग डिसीजन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी अलग अलग प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के हिसाब से जो है उसका पैकेजिंग रहता है. कोई प्रोडक्ट के लिए बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई प्रोडक्ट के लिए जो है मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, कई प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्लास्टिक रैपिंग किया जाता है, कई प्रोडक्ट जो है उसमें जो है वो पेपर पैकिंग किया जाता है. चॉकलेट जो है हम क्या करते हैं, वो हम प्लास्टिक रैपिंग रहता है. बिस्किट जो है उसमें भी एक रैपिंग रहता है. उसका पर्पस क्या है कि प्रोडक्ट इज सेफ फ्रॉम द डैमेजेस, यानी प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहना चाहिए. अब सिर्फ पैकेजेस इतना ही, पैकिंग यानी सिर्फ प्रोडक्ट को जो है डैमेजेस से बचाना, इतना ही पैकेजिंग का काम नहीं है. पैकेजिंग का काम जो है आज के डेट में बहुत बड़ा है. तो हम उसके फंक्शंस देखेंगे पैकेजिंग के. पहले पैकेजिंग क्या है ये आपके ध्यान में आ गया. यू हैव टू रेफर द पेज नंबर 12 फॉर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजिंग. So what is the function? Function is the protection from the damages. This is the first and important function of the packaging, that the product should be protected from the damages. किसी भी प्रकार का उसको damages नहीं होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कई बार जो है वो नेशन वाइड जो दूसरे कंट्री में भी प्रोडक्ट भेजा जाता है. तो वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट का कोई भी डैमेज ना हो. तो फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन फ्रॉम दी डैमेजेस. तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए डैमेजेस से. उसके बाद में प्रिवेंशन फ्रॉम इवेपोरेशन. प्रिवेंशन फ्रॉम इवेपोरेशन, कई जो प्रोडक्ट है वो इवेपोरेट होते हैं, मतलब अगर क्लाइमेट के साथ या हवा के साथ उसका कांटेक्ट आता है तो इवेपोरेट होता है, वो कम हो जाता है, उड़ जाता है. ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं. तो इट्स नीड्स अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग. उसको एयर टाइट पैकेजिंग चाहिए कि हवा के साथ उसका बिल्कुल भी कांटेक्ट ना है. इवेपोरेट हो जाएगा प्रोडक्ट जो है वो, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएंगी, उसकी क्वालिटी भी डिटोरेट हो जाएंगी. इसलिए यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है उसका, प्रिवेंशन फ्रॉम इवेपोरेशन. थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पॉइलेज. अगर क्लाइमेट के साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि क्लाइमेट के साथ में अगर कांटेक्ट आया तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है, उसमें उस टाइप की क्वालिटी नहीं रहती जैसे कि पहले जो पैक करते वक्त रही है, तो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है. तो थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पॉइलेज. प्रोडक्ट स्पॉइल नहीं होता, क्लाइमेट के साथ कांटेक्ट आने की वजह से खराब नहीं होता, ये भी एक फंक्शन है. उसके बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीकेजेस. अगर लिक्विड प्रोडक्ट है, इफ द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो एट दैट टाइम देर इज मोर चांसेस टू लीक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको एक अलग टाइप का पैकिंग चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहने की वजह से देर आर मोर चांसेस फॉर लीकेजेस. लीकेजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो देयरफॉर देयर इज अ नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी लीकेजेस. यानी हर टाइप के प्रोडक्ट को अलग टाइप का पैकेजिंग चाहिए. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट का पैकिंग जो है वो बहुत बढ़िया रहना चाहिए. देन नंबर 5, कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर. अब कुछ प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार के रहते हैं कि उसको पैकिंग की ज़रूरत इसलिए रहती है बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर. कस्टमर के कन्वीनियंट के हिसाब से होता है, कस्टमर को हैंडल करने के लिए ईजी होता है, इसलिए जो है वो प्रोडक्ट का पैकिंग जरूरी है. अब सिर्फ इतना, ये तो बेसिक फंक्शंस हो गए, लेकिन सिर्फ पैकिंग जो है वो आज के डेट में सिर्फ प्रोडक्ट का पैकिंग अच्छा रहना इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट, बट पैकिंग शुड बी एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल. क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो
सिर्फ लोग बाहर से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख के प्रोडक्ट लेते हैं, यानी देर इज़ नो सच टाइप्स ऑफ ब्रांड प्रेफरेंसेस, या ब्रांड प्रेफरेंसेस भी होंगे तो इतने ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं होते। लोग जो है वो बाहर का जो उसका पोर्शन है तो उसमें अट्रैक्ट होकर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं। कई बार जो है हम वेफर्स देखते हैं तो वेफर्स का पैकिंग देखिए एक बार, वेफर्स का पैकिंग तो रहता ही है, लेकिन उसका जो फ्रंट साइड रहता है, दर्शनी भाग जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो भाग है उसका, वो अट्रैक्टिव पैकिंग तो रहता ही है। इट इज़, अगर वो पैकिंग नहीं रहा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन पैकिंग शुड बी एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। जितना पैकिंग अट्रैक्टिव है उतना ही जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर ले सकते हैं। तो ये भी उसमें इम्पोर्टेंट बात है। तो आज के ये पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ब्रांडिंग डिसीजन लिया, देखा कि ब्रांडिंग क्या होता है और ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो है हमने पैकेजिंग डिसीजन देखा। तो पैकेजिंग में हमने ये देखा कि पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है। तो इसका डिटेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में जो कॉपी जो दी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको अगर रेफ़र करेंगे तो इसका जो है बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।